آج ہم نے رخ کیا ہے تھانہ سٹی تھانے کا، تو چلتے ہیں وہاں جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں باتیں کرنے کی. آئیے چلتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس کو جوائن کیا اپنی خوشی سے، آپ کو پولیس میں آنے کا شوق تھا؟ جی اپنی خوشی سے میں نے جوائن کیا. پہلے میں لیویز میں تھا ایز اے رسالدار میجر. تقریباً 28 سال میرا سروس ہے. تو اس کے بعد ابھی یہ مرج ہوا پولیس میں 3 مہینہ مجھے ہوا ہے ابھی ادھر ڈی ایس پی. اچھا سر، یہ پولیس میں آپ دیکھیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کا ہر دکھ درد میں آپ لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے سب سے پہلے دوڑ لگانی پڑتی ہے. تو یہ کیوں پھر اس دوڑ کی فیلڈ میں آپ کی سروس میں پھر دوڑ کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہاں دوڑ کی بالکل ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یعنی اس کو فٹنس دیکھنا پڑتا ہے ان کا کہ وہ کیسے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. نہیں تو عام سروس میں پھر دوڑ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جب اس کی نوکری ہو گئی اب اس کو دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد پھر اس کو جو نا چست کرنے کے لیے تھوڑا سا دوڑانا پڑتا ہے تاکہ وہ چست رہے، چوکن رہے. اچھا، تو دیکھیں سر، پولیس کا نام جہاں پہ بھی آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس ہے، یعنی کہ کہیں پہ حالانکہ آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا شعبہ ایسا ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. تو کیا گھر میں بھی آپ پولیس والے ہی ہوتے ہیں یا گھر میں ایک والد کی طرح ہوتے ہیں؟ نہیں، گھر میں والد کی طرح ہونا پڑتا ہے، ایک عام شہری کی طرح ہونا پڑتا ہے. باہر تھانہ شہر میں یا جو ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا سخت پیش ہونا پڑتا ہے. تو کبھی آپ گھر میں جا کر یہ بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کہیں گے کہ آج میں نے ایک اتنا خطرناک مجرم پکڑا ہے، تو یہ خوف بچوں میں تو نہیں پایا جاتا؟ نہیں پایا تو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، کیسے تھے. اب لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے، جاتے ہو. کبھی چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا نہیں جاؤ، نوکری چھوڑو، تو یہ ہوتا ہے اس بچوں میں. اگر آپ پولیس میں نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر پولیس میں نہیں ہوتے پھر خدمت خلق ہوتے، لوگوں کی خدمت کرتے. نہیں تو ابھی آپ دیکھیں کبھی قانون سب کے لیے ہے، جس میں آپ قانون کی پاسداری کریں گے تو ہم عوام یا ہم لوگ، ہر بندہ، ہر شہری جو ہے اس پر عمل کرے گا. اب اگر علاقائی حساب سے ہمارے خضدار میں جو ہے ہیلمٹ پہننا یا ڈرائیونگ کا حساب سے جو ہے چلو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تعاون سے نہیں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے. تو کبھی آپ خود بغیر، کبھی آپ نے اس طرح ہوا آپ کی زندگی میں، کبھی آپ کا تعلق ہوا کہ آپ نے قانون کو خود توڑا؟ نہیں، قانون کو تو توڑنا بہت بری بات ہے، کیونکہ ہم لوگ شوق سے آئے پولیس میں، تو یہ ہم لوگوں کا پورا وہ ہے کہ قانون ہونا چاہیے. توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ، میں یہ کہتا ہوں کہ مثال آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی، آپ نے ون وے توڑا، تو یہ قانون توڑنے کے مطلب ہے. مسئلہ یہ کہ موٹر سائیکل میں نے کبھی چلایا نہیں ہے، تو اس وجہ سے تو ہیلمٹ پہنا نہیں ہے. ویسے جب چلانا ہوگا انشاءاللہ پہن لیں گے، امید ہے. جی. تو یہ طاقت جو آپ کو آتی ہے پولیس کے نام سے طاقت آتی ہے، یا اس کو بندے کو ویسے ہی اس میں ایک ایماندار اور ایک تجربہ ہونا چاہیے اور ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں خود پولیس والا ہوں، میں کسی بھی مجرم کو، کسی بھی جرم کو ہونے نہیں دوں گا، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے یا بندوق اٹھا کے یہ طاقت آ جاتی ہے؟ نہیں، ایک یہ جذبہ ہوتا ہے. یعنی جب پولیس میں جو انسان چاہتا ہے کہ پولیس میں جاؤں نا، اس کو پہلے سے جذبہ ہوتا ہے. اور وردی میں بہت بڑی طاقت ہے. جب آپ ویسے جتنا اس میں آپ پہ جذبہ ہوگا، وردی پہنو گے نا تو دگنا بلکہ چگنا ہو جاتا ہے. تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ اپنے بچوں کو، آپ بیٹھے ہوں گے تو وہ پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ بھی ان کو اسی فیلڈ میں لانا چاہیں گے یا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر اس طرح کے شعبے میں؟ نہیں، میں چاہوں گا کہ وہ پولیس میں آئے، لوگوں کا خدمت کرے. میں چاہوں گا کہ میرے بچے پولیس میں آ جائیں. ابھی میں موجود ہوں سٹی تھانے کے ایس ایچ او صاحب کے ساتھ، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ پراپر خضدار کی ہیں؟ جی میں بالکل خضدار. تو پولیس میں آنے کا آپ کو شوق تھا؟ دیکھیں ہر بات میں ویسے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بچپن سے شوق ہے، تو کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا یا آپ ایسے اتفاقاً آ گئے؟ نہیں، مجھے بھی شوق تھا، بچپن ہی سے پولیس میں آنے کا شوق تھا. الحمدللہ شوق بھی پورا ہو گیا. اچھا، اس میں دیکھیں شوق اگر پولیس کا ہوتا ہے تو پھر کھیل بھی ایک تھا، شروع میں بچپن میں کھیلا ہوگا چور اور پولیس، تو یہ کھیل ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے یا؟
वो तो स्कूल में या किसी ऐसे प्रोग्राम में चोर सिपाही वाला, लेकिन आजकल तो ऐसे सर अभी अब मुजरिम जब पकड़ते हैं तो अब वही खेल तो आपका वो है अभी तक? नहीं, इसमें आप खेल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये है कि जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ड्यूटी फ़र्ज़ है, तो इसमें अगर किसी की चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो ज़ाहिर है इसकी में पुलिस का फ़र्ज़ है कि उनको पकड़ना, अदालत में पेश करना और जिनके साथ हुआ उनको इंसाफ दिलाना। अच्छा है, सुनने में ये आता है बल्कि तजुर्बा भी है लोगों का कि पुलिस वाले बड़े सख्त होते हैं, सख्त दिल होते हैं मतलब है। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं, आपने खुद देखा होगा, आपको भी तजुर्बा होगा, इतने सख्त दिल के नहीं होते हैं, हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन नहीं देखें, पुलिस का एक नाम होता है ना कि थाने में आते हुए या पुलिस वाले से मिलते हुए एक अजीब सी कैफियत होती है। तो आप जिस तरह थाने में ज़ाहिर है आपने मुजरिम के साथ बैठ के बातें तो नहीं करनी है, वो और माहौल है, मगर इससे हट के आप जो है एक घर में आपका क्या उठना बैठना, इसी तरह पुलिस जिस तरह पुलिस से लोग डरते हैं, क्या बच्चे भी पुलिस वाले से डरते हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं डरते हैं। और आपने जिस तरह कहा है कि पुलिस का एक अलग, वो सिर्फ हम फिल्म और ड्रामों में देखते हैं, लेकिन रियल आप तो खुद ही देख लेंगे, पुलिस में इतना वो नहीं है कि आम पब्लिक उनसे डरे। अच्छा, कभी किसी मुजरिम को ऐसे पकड़ते हुए कभी आप रहमदिली की जब बात कर रहे होते हैं कि हर पुलिस वाला नहीं है, तो किसी पे रहम आया आपको? हाँ बिल्कुल, इस तरह अक्सर इस तरह हो जाते हैं। जिस तरह अभी भी मेरे सामने एक लड़के ने चोरी की तो उसकी वालिदा आ गई कि बस इसको माफ़ कर दे। हमने कहा हम तो माफ़ नहीं कर सकेंगे, उसने चोरी किया, हमने पकड़ लिया, अभी अदालत, उनको सज़ा जज़ा अदालत के पास है। तो देखें, आपके लिए दिन रात कोई भी टाइम आपके लिए फ़िक्स नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर वक्त जागना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे इस सिटी के अंदर अभी तो रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है, इसमें आपकी ड्यूटी और ज़्यादा हो गई होगी। तो क्या आप एक पुलिस में भर्ती होने के लिए सबसे पहले या शर्त रखी जाती है कि आपने तेज़ दौड़ना है सबसे ज़्यादा? तो शुरू में दौड़ को हो के आप जब अपॉइंटमेंट भर्ती हो जाते हैं तो सर्विस में कभी दौड़ की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, दौड़ यही है, सुबह शाम दौड़ है। अच्छा, हाँ, मुजरिमों के पीछे ये भी तो एक दौड़ है। ये सुस्त दौड़ नहीं से कहेंगे इसको? नहीं, सुस्त नहीं, सुस्त तो अगर सुस्त किसी को जो सुस्त होगा तो वो ज़ाहिर पोस्ट पे नहीं होगा ना। क्या कहेंगे आप सर आज अपने डिपार्टमेंट वालों को या लोगों को अमन के हवाले से क्या कहेंगे? अमन का क्या पैगाम देंगे? इस तरह की पुलिस आपके पास एक मतलब एक बेहतरीन पुलिस आपके हाथ में सब कुछ है, किसी का हक दिला सकते हो। बस यही है कि आप हक को इतना साबित कर लो, ये आपके लिए बहुत है। नूर हुसैन, आप क्या हैं यहाँ पे सिटी थाने में? ये यहाँ पे मैं घर में पुलिस में हैं? पुलिस में जी। कब से हैं? तकरीबन मैं यहाँ पे तकरीबन 1 महीने से हूँ। अच्छा, आप मुजरिम पकड़ने जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आपको कभी तरस आया किसी मुजरिम पे? नहीं, हमें तरस नहीं आता है क्योंकि हम उनके पीछे पड़ते हैं ताकि उन्हें पकड़ते हैं, हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। देखें, मुजरिम को पकड़ने के लिए किसी ने गलत किया है, मुजरिम है और उसने जुर्म किया है, तो उसको पकड़ना पुलिस की ज़िम्मेदारी, और ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं है। देखें, अब आप सर्विस में आप भी एक बहैसियत इंसान हैं, तो आपको कभी किसी पर रहम आया? कभी तो आता है लेकिन महकमे के आर्डर के मुताबिक चलना होता है। अच्छा, पुलिस में जब भर्ती हुई तो आपने दौड़ लगाई थी? जी, क्यों? ताकि इसी वजह से कोई अगर मुजरिम हो उसको पकड़ने के लिए अगर दौड़ का ज़रूरत हो तो दौड़ भी लगा सकते हैं। तो मतलब अगर वो मुजरिम तो ज़ाहिर पैदल तो नहीं आएगा, वो तो किसी सवारी पे आएगा। सवारी भी होता है, मोटरसाइकिल भी होता है हमारे साथ में। जो शुरू में देखें सर्विस में आने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, जी तो सर्विस के अंदर दौड़ की कभी ज़रूरत पड़ी है? जी जी, क्यों दौड़े? क्योंकि अगर तकरीबन किसी को पकड़ने के लिए होता है तो दौड़ भी लगाना पड़ता है उसके पीछे। पूरे शहर का एक निज़ाम होता है, उसे संभालना एक ट्रैफिक का काम होता है। अगर वो अपने काम से मतलब इनकार करें या ना कर सकें तो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। हमारे साथ ट्रैफिक सार्जेंट साहब बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, ट्रैफिक का निज़ाम जब आप संभाल रहे होते हैं तो इसके लिए ट्रैफिक के इशारे एक उसकी अपनी ज़बान होती है, तो उसके लिए आपको बाकायदा ट्रेन किया होता है? बिल्कुल सर, ये ट्रैफिक के लिए हम लोगों को एक कोर्स है इशारे का, वीआईपीज़ का और आम शहरियों का, चौकों का, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे हैं, ये हम लोगों ने किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, ट्रैफिक का एक निज़ाम होता है, देखो चलाना होता है, उसमें आपने जो है बाकायदा इसका कोर्स किया होता है। तो मैं एक मज़ाहिया बात करूँगा आपके सामने कि एक बंदे ने या एक खातून ने जो है अपने बच्चे को दुआ दी कि आप बड़े होके इतने बड़े आदमी बन जाओगे कि आपके चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होंगी। तो आप क्या समझते हैं, आप अपने बच्चों को यही दुआ देंगे कि उसकी तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हों? ये जिहालत है हम लोगों का जो है ना यार। कोई मतलब कि कोई अपने मजाकिया बात बताता है, कोई क्या कहता है, लेकिन ये मतलब इतना वो नहीं है। आप अपने जो आपका काम है, जो ट्रैफिक का निज़ाम आप चला रहे होते हैं, तो आप इससे मुतमईन हैं या आप परेशान हो जाते हैं कभी-कभी? जिस तरह का अभी इस ट्रैफिक का निज़ाम है, हर शहर में आपने शहर के तमाम चौकों पर जाना होता है, तो आपके लिए परेशानी होती है इन सबको संभालना? बिल्कुल पहले था, नफरी की कमी था। जनाब DH साहब कासम साहब भी आए हैं, हमें नफरी भी दिए हैं। जनाब SSP साहब भी आए हैं, हमें नफरी भी दी है। अभी माशाल्लाह हम लोग थोड़ा मुतमईन है। पहले नफरी नहीं था, अभी नफरी है माशाल्लाह। इतने आप भी देख रहे होंगे बाज़ार में इतना मतलब ट्रैफिक जाम भी नहीं होता। अक्सर अरबाब कम्प्लेक्स का शिकायत हो रहा था, वो भी हम लोगों ने मसला हल कर दिया माशाल्लाह। जालवान कम्प्लेक्स का बाकी जो है ना ईद पर तो रश होता है। अच्छा, वैसे कभी हौसफी साहब ऐसा होता है कि आपने इशारा किया कि आप रुको और लोग नहीं रुके, आपकी बात नहीं मान के चले गए, कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, कभी कभी ऐसा हुआ है। हम लोग पीछे गए हैं, पकड़े हैं, चालान किए हैं जन। और इस दफ़ा माशाल्लाह कासिम साहब ने बहुत सख्ती किया हुआ है। 2 महीने में तकरीबन 400-450 चालान, पेमेंट मेरे ख्याल में 280 3 तक वो जो है ना कैश चालान भी हुए हैं बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। अच्छा सर, ये कभी ऐसा होता है कि आपने आपकी बात कभी नहीं मानते हैं ट्रैफिक वाले, कभी आप जो है किसी को हाथ ऊपर करके इशारा करते हैं कि आप रोको, मगर वो रुकता नहीं, वो समझता है गौसफी साहब ने शायद मुझे सलाम दिया। नहीं भाई, फिर ऐसे आदमी है लापरवाह है, उनके पीछे जाते हैं, पकड़ते हैं, थाने में लाते हैं, जो है ना चालान भी करते हैं। अच्छा, अभी आपकी तरफ से मैं ये समझूंगा कि 80% जो आप बात कर रहे हैं कि आपने पूरा ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो कंट्रोल किया हुआ है। हर जगह पे वन वे के लिए जो है पुलिस नफरी आपके पास ज़्यादा है, तो वो संभाल रहे होते हैं। तो इसके बावजूद भी लोग ट्रैफिक का निज़ाम या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के या गलत पार्किंग करके चले जाते हैं। हमारे भाई ऐसे कबायली इलाके, अमीर मुतबर के लोग हैं, जिहालत भी है, बस करते हैं गुजारा, हर किसी के साथ गुजारा करते हैं बस। मतलब आप क्या समझते हैं, आपकी बात नहीं चलती है या क्या वजह क्या है? क्योंकि कानून सबके लिए होता है, मैंने भी कानून पे अमल करना है, आपने भी कानून पे अमल करवाना है। तो कबायली ठीक है, बिल्कुल कबायली, मगर कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। कानून एक है, ये बात आपका हकीकत है, लेकिन ऐसे आदमी है जो कानून को समझते नहीं है। कानून को तो आप क्या पैगाम देंगे अपने शहरियों को, खुशदार वालों को क्या पैगाम देंगे कि अगर सिविल वर्दी में आपका सार्जेंट पुलिस वाला खड़ा है, आप उसकी बात माने, ट्रैफिक के इशारों को माने, गलत पार्किंग ना करें, क्या पैगाम? खुशदार वालों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, वही खास कर अपना जो है ना 2 वे पे खड़ा नहीं करे, 1 वे पे खड़ा नहीं करे, जो है ना डबलिंग नहीं करे। ये हम लोगों का इल्तिमास है उनके साथ। वैसे भी हम लोग बहुत गुजारा करते हैं इन लोगों के साथ। हमारा यही इल्तिमास है खुशदार के लोगों के, मतलब ट्रैफिक का खास ख्याल करे, तावन करे, ख्याल करे। ये शहर भी उन्हीं का है, हम लोग भी उन्हीं के हैं। आज हमने सिटी थाने खुशदार में जो है पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुफ्तगू की है तौबा गोश प्रोग्राम के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी बातें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मुर्तज़ा वालों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।